Not everyone gets it right, and we don't get it right all the time. But you know, making the kids eat as healthy as possible is one of the most important things. So we all know you like scoring goals on the field. We've all cheered for them. But how are you in the kitchen? Do you like to cook? And any favorite recipes you'd like to share? Well, of course, I did score a few goals, but actually I set more goals up than I actually scored. So, but in the kitchen, it's one of my passions. I love to eat food, I love to cook food, and especially for the kids as well, and also for Victoria. You know, she's very particular in what she eats, so I love, you know, coming up with new things to eat. I love coming up with new recipes, and the kids are exactly the same. You know, the kids' favourite meal is spaghetti bolognese, so I try to make as much spaghetti bolognese as possible, and I hide the vegetables in. They never knew that, but they're going to know that now. So for the entire audience that's joining us today, and well, me as well, I'd really like to know your most inspired, your most well-protected health tip being AIA Global Ambassador. Firstly, I would like to say thank you for having me on. You know, I'm very proud to be ambassador of AIA, and I think that to be part of a company and a business and a brand that does so much great things for people, and to help them live, you know, healthier, longer, better lives. It's something that I always try to do. So it's always, you know, it's the little things that make the biggest difference. And that's the one thing that I will say to everyone listening. Sometimes it's just the small changes that are the big changes are in your life. Well, I do want to ask you about one of my favorite films of all time, Bend It Like Beckham. So my question is, you know, do you like the film? Have you watched it recently? And do you still, you know, kick the ball around? Have I seen the film? I've probably seen the film more than most people have seen the film. My children have all watched it over the years, and I've watched it many a times. Actually, throughout lockdown, we watched it a lot, and the kids fell back in love with it again. So, yes, I've seen the film many times, and yes, I still love to kick the ball around at home, and I try to bend it like me. Well, I've heard you mention that you've wanted to visit India. Is there anything special you'd like to do when you're here? And also, is there any message you'd like to give to your millions and millions of Indian fans? I must admit, there's quite a few things that I'd love to do when I visit India. Obviously, culturally, it's incredible. The people are amazing. There's so many things to see. And I'm a big foodie as well. So to actually eat some great food in different places would be a real passion of mine. And also, you know, I ride motorbikes, and I've heard that it's the most amazing place to ride bikes in. So that would probably be my dream. My dream would be to ride my bike to an amazing restaurant or an amazing village that makes amazing food. So that would be my dream. Well, that's awesome. I tell you, on behalf of all the football fans and all your fans in India, we can't wait to have you here. And thank you so much for taking out time for us today. Thank you so much, and lots of love to everybody. जय के साथ वीरू जाता है, फ़ोन के साथ चार्जर जाता है, मटर के साथ पनीर जाता है. इसी तरीके से हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड भी अच्छी तरह जाता है. देखिए, आप लोग सब समझते हैं कि पावर जो है वो यहाँ है. पावर यहाँ तो है ही, पर पावर यहाँ भी है. असली पावर है इधर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल वेलबींग. अब जो हमारी माइथोलॉजी है, इसमें देयर सम अमेजिंग लेसन्स एंड अमेजिंग स्टोरीज दैट यू कैन यूज फॉर योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, योर मेंटल वेलबींग. और देखिए, आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्वर्सेशंस जो हैं, राइटफुली सो, are very prevalent. There are people talking about it, and it is something that must be addressed. So that's why we have Mr. Mythology, who's joining us today, and he's going to do a session with us, tell us some amazing stories and some amazing learnings from our mythology that will help us in this mental well-being. It will help improve our mental health. I personally am very excited about this session. Please welcome Mr. Devdutt Pattanaik. नमस्ते, देवदत्त पटनायक है. तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन पर. मैं मिथोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ,
तो मिथोलॉजी में इंडिया में जब बात करते हैं तो पहले तो ये बात क्लैरिफाई करते हैं कि मिथोलॉजी शब्द का मतलब क्या है। कुछ लोगों को बहुत इरिटेट होता है शब्द, लेकिन मिथोलॉजी का शब्द है वो कहानी जो हमारे निजी सत्य को व्यक्त करते हैं, हमारे समाज के सत्य को व्यक्त करते हैं। ये वैज्ञानिक सच नहीं है, इसलिए इन्हें फैक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये विश्वास का सच है, तो ये झूठ भी नहीं है। तो ये ना फैक्ट है ना फिक्शन है, ये विश्वास का सच है, इसलिए उन्हें थर्ड शब्द दिया जाता है मिथ। तो इफ फैक्ट इज एवरीबॉडीज ट्रूथ एंड फिक्शन इज नोबडीज ट्रूथ, देन मिथ इज समबडीज ट्रूथ, किसी का सच। और मिथोलॉजी भारत का सच, जो इंडियन मिथोलॉजी भारत का सच बताता है। ग्रीक मिथोलॉजी और बाइबल पढ़ते ही मुझे एक वेस्टर्न सच समझ में आता है। तो भारत के बारे में समझने के लिए इंडियन मिथोलॉजी, जो यहाँ पे लिखी गई कहानी, इनसे मुझे एक धारणा हो जाती है सोचने का। एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम बोलते हैं ना, वेस्टर्न के लोग बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, जो पाश्चात्य परंपरा है बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होता है, और इंडियन परंपरा जो होता है बहुत फैमिली ओरिएंटेड होती है। तो मैंने ये सुना है, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मिथोलॉजी में कैसे पता चलता है? जब आप सबसे पुरानी वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ते हो तो दो एपिक्स के नाम आते हैं, दो महाकाव्य। एक है इलियाड और एक है ओडेसी, जो ट्रोजन वॉर पर आधारित है। ये ग्रीक मिथोलॉजी है, मतलब यवनों की कहानी है। और ये दोनों कहानियों के जो मुख्य पात्र हैं, जो नायक हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं। इलियाड में कैरेक्टर होता है जिसका नाम है अकिलीस, और ओडेसियस में होता है एक पात्र जिसका नाम है यूलिसिस या ओडेसियस। और पूरी कहानी ये दो लोगों की कहानी है, इंडिविजुअल कहानी है, केवल एक मात्र। उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा है इस कहानी में। लेकिन जब भारत के महाकाव्य की बात करते हैं, जैसे रामायण और महाभारत, तो दोनों महाकाव्य परिवार के बारे में है। रामायण में 3 परिवार आते हैं, एक अयोध्या वाला परिवार, फिर किष्किंधा में सुग्रीव वाली वाला परिवार, मतलब वानरों का परिवार, फिर हम लंका में जाते हैं तो रावण और राक्षसों का परिवार। तो परिवार को लेके कहानी होती है। महाभारत में तो कौरवों और पांडवों की कहानी, फिर यादवों की कहानी, तो वापस परिवार आ जाता है। तो परिवार के भीतर जो पॉलिटिक्स होता है, जो इश्यूज होते हैं, डिस्कस होता है। तो ये देखिए, जैसे अगर हम पाश्चात्य परंपरा के बारे में बात करते हैं और उनकी कहानियों को देखते हैं, उनके महाकाव्यों को देखते हैं, तो वहाँ इंडिविजुअलिज्म दिखाई देता है। और आज भी अगर आप अमेरिका या यूरोप में जाते हो तो ये दिखाई देता है कि लोग, मतलब 16 साल होते ही बच्चे घर से चले जाते हैं, फिर सिर्फ क्रिसमस टाइम में विजिट करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप है, बट बहुत अलग प्रकार का रिलेशनशिप है। थैंक्स गिविंग के टाइम साथ में बैठते हैं, क्रिसमस के टाइम साथ में बैठते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, शादी के बाद भी पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, वृद्ध पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, तो उन्हें बहुत विचित्र लगता है। लेकिन भारत में नहीं। हमारा यहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, सिर्फ 100 साल हुए हैं जॉइंट फैमिली का सिस्टम गया है। और हम हमेशा परिवार के बारे में बात करते हैं। जब हम वेद पढ़ते हैं तो वहाँ पे गहपति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ये कॉन्सेप्ट रोमन नॉट वेस्ट में नहीं है, पैटरफैमिलिया का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम कहानियों से देखते हैं कि एम्फसिस कहाँ पे है, व्हाट इज द एम्फसिस, इंडिविजुअल के ऊपर या परिवार के ऊपर। हमारे यहाँ परिवार वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि हमारे यहाँ अगर कोर्ट ऑफ लॉ भी नेगेट कर दिया ना, जब तक फैमिली आपको सपोर्ट करती है सब कुछ ठीक है। वी रियली आर बेस्ड ऑन फैमिलीज। इतना तक कि अगर आप मंदिरों में जाएं तो देखते हैं कि सब जगह फैमिली को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी के टाइम पे देखिए, गणेश चतुर्थी के टाइम पे हम सडनली माता जी की याद करते हैं तो गौरी आ जाती है पूजा में। या फिर दुर्गा पूजा का पंडाल, अगर आप बंगाल में जाओ तो वहाँ दुर्गा बैठी हुई है, बगल में बच्चे हैं, तो कार्तिकेय है, गणेश जी हैं, और बंगाल में कहते हैं लक्ष्मी सरस्वती उनकी बेटियां हैं। पीछे अगर छोटी फोटो देखो तो वहाँ पे शिव जी भी बैठे हुए हैं। शिव के मंदिर में जाओ तो वहाँ पे देखेंगे कि शिव के बगल में पार्वती की मूर्ति होगी, फिर गणेश जी की मूर्ति होगी, कार्तिकेय की मूर्ति होगी। कोई देवता अकेला नहीं होता, कोई देवता एक आध बार जो ब्रह्मचारी होता है, जैसे हनुमान जी का मूर्ति होता है, वो अकेला होता है, लेकिन ज़्यादातर फैमिली साथ में। तो राम मंदिर में सीता हमेशा होंगी, लक्ष्मण होंगे, और अगर आप विष्णु के मंदिर में जाए तो लक्ष्मी बगल में होगी, गरुड़ बगल में होगा।
तो देवी देवताओं के साथ रहते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। साउथ इंडिया के टेम्पल में जाओ तो कोई एक मंदिर नहीं होगा, मंदिर के छोटे 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 मंदिर होंगे कि पहले शिव के मंदिर जाओ, उसके बाद शक्ति के मंदिर जाओ, उसके बाद कृष्ण के मंदिर जाओ, अलग अलग अवतारों का मंदिर होता है, ऋषि मुनि बगल में रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज जैसे एक दरबार हो, जैसे राम दरबार होता है या दीवान होता है, ऑफिस होता है, एवरीबडी इज टुगेदर, इट्स ऑलवेज अ क्लस्टर, अ कलेक्टिव। और इससे हमें भारत की आत्मा के बारे में समझ में आता है कि वी आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल। मतलब फैमिली ओरिएंटेड तो ये शब्द आ जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, बहुत फेमस इंडियंस बोलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। और ये वर्ड कहाँ से आता है? मीनिंग बहुत सिंपल है कि ब्रह्मा जी ने सभी जीव जंतुओं को प्राण दिया है, इसलिए वी आर ऑल रिलेटेड वाया ब्रह्मा टू ईच अदर। तो ऑल लिविंग क्रीचर्स, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू ब्रह्मा। ये बोलना बहुत आसान है, बट वी नो हर घर में कहानी क्या होती है। हर भाई भाई में झगड़ा होता है। रामायण में देख लो, भाई भाई के बीच में झगड़ा, सुग्रीव और वाली के बीच में झगड़ा, रावण और कुबेर के बीच में झगड़ा। महाभारत तो बाप रे, बड़ा युद्ध, कौरवों और पांडवों के बीच में झगड़ा। तो झगड़ा हमेशा होता है। तो ये वसुदेव कुटुंबकम बोलना बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं फैमिली में लड़ाई बहुत होती है। इतना कि देवासुर संग्राम होता है, हम बोलते हैं ना, गॉड्स एंड डीमंस आर फाइटिंग ईच अदर, हमेशा देवासुर संग्राम चालू रहता है। और देव भी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि पितामह, और असुर भी ब्रह्मा जी को कहते हैं पितामह, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड। मतलब वो भाई भाई हैं, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। या फिर गरुड़ जो होते हैं, ईगल्स या काइट्स होते हैं, वो हमेशा नागों के साथ लड़ाई करते हैं। राक्षस जो होते हैं वो यक्षों के साथ लड़ाई करते हैं। तो यक्ष लड़ाई कर रहे हैं राक्षस के साथ, देव लड़ाई कर रहे हैं असुर के साथ, नागों लड़ाई कर रहे हैं गरुड़ के साथ। लड़ाई लड़ाई किसके ऊपर? लड़ाई जमीन जायदाद के ऊपर लड़ाई। क्योंकि अगर वसुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, देन अर्थ इज माई प्रॉपर्टी। तो किसका हिस्सा ज़्यादा, किसका हिस्सा कम? तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन मिथोलॉजी में बैठा हुआ है। हर घर के बारे में हमें कहानी मिलती है। फैमिलीज़ में क्या होता है, फैमिलीज़ को मैनेज कैसे करना है, ये सब बताती है हमारी शास्त्र, हमारे जो शास्त्र होते हैं। शास्त्र को इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जो भी नॉलेज होता है उसको जब ऑर्गेनाइज करते हैं उसको शास्त्र कहते हैं। तो जैसे धर्मशास्त्र हुआ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है, काम शास्त्र होता है जो जॉय और प्लेजर और ब्यूटी के बारे में बताता है, अर्थशास्त्र होता है जो सक्सेस के बारे में बताता है, मोक्ष शास्त्र होता है जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। तो हमारे यहाँ हर प्रकार के शास्त्र होते हैं, लेकिन लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए जो वेद का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, लोगों ने कहा कि कहानी इज द बेस्ट वे, स्टोरी के माध्यम से। तो देखिए ना, अगर आप स्टोरी सुनेंगे, जब हम कैलाश पर्वत पे जाते हैं और शिव जी के बारे में सुनते हैं वहाँ पे, तो शिव जी और शक्ति उनके बगल में बैठी हुई है, और हमेशा उनके बीच में जो कहानी है वो दाम्पत्य की कहानी, हस्बैंड वाइफ की कहानी, या उनके बच्चों के बीच में जो कहानी है, सिबलिंग राइवलरी की कहानी। गणेश जी और कार्तिकेय जी रेस पर जाते हैं, सिबलिंग राइवलरी की कहानी होती है। यू हैव टू नोटिस थिंग्स, छोटी छोटी बातें कैसे समझ में आती है। शिव के गले में एक नाग है। नाग है। नाग खाता क्या है? चूहा। चूहा कहाँ पे है? गणेश जी के पास। और नाग को खाता कौन है? मोर। मोर कहाँ पे है? कार्तिकेय के पास। मतलब कार्तिकेय का जो वाहन है मोर, वो नाग के पीछे दौड़ेगा, नाग चूहा के पीछे दौड़ेगा। फिर शिव जी के वाहन का नाम है नंदी, वो एक बैल है। बैल को खाने वाला शेर शक्ति का वाहन है। मतलब देखिए, अगर आप पिक्चर देखो तो प्रेडेटर प्रे सब जगह दिखाई देता है, भेड़िया और भेड़ सब जगह। ये फैमिली दिखाई दिया, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा है। क्यों नहीं लड़ रहा है? क्यों नहीं लड़ रहा है? बिकॉज शेरावाली के बगल में हमारे ऋषभनाथ शिव जी बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी चाहिए। आपका शेर मेरा बैल को खा जाएगा, या गणेश जी को लड़ाई करने वाले हैं शिव जी के साथ कि आपका नाग मेरे चूहे को खा जाएगा। लेकिन हैप्पीनेस है लाइफ में। कैलाश पर्वत में जाओ तो शांति है, सुख है। क्यों है? यही बातें हमारे शास्त्रों में बताते हैं।